Good evening, everyone. Today I am continuing the chapter. The previously we have read some of the definitions of geotechnical engineering. Now I have one topic like that is unit phase diagram and we have different formulas. After knowing the formulas, we can go back to the questions. तो first हमें एक formula में देखिए unit phase diagram. The unit phase diagram में mainly this is the phase diagram of the soil. Phase diagram of the soil हमें ये जिन सब volume of the soil पहुँचे and this is the volume of the void. In the unit phase diagram we are representing the Vs as 1. तो Vs को 1 represent करके and volume of void is represented as E. तो एबे हमें कौन करी करिए हमें we can get the relation between the void ratio and porosity. The relation between void ratio and porosity is we have to derive this relation. The porosity is defined as volume of void divided by the total volume. So the volume of we can do one thing. Volume of void divided by volume of total volume is comprising of volume of solid plus volume of void. So here I am doing division by numerator is divided by Vs, also denominator is divided by Vs. So this one will get converted into Vb by Vs, that is E, divided by Vs by Vs, that is 1, Vb by Vs, that is E. So we can get that porosity is equals to E divided by 1 plus E. This is a very important relation and we have to remember this relation. Also, we can get the porosity from the void ratio, that is E will be equals to N, that is porosity divided by 1 minus. So this is the relation between porosity and void ratio. Next we have different important formulas. We have to remember this formula. We can also derive this formula. So we have mainly the 6 formulas, but in this chapter we will be using the 5 formulas. These 5 formulas, basic formulas. The first formula will be E into SR will be equals to water content into specific gravity G. E SR is equals to W into G. Second is the dry density or dry unit weight will be equals to gamma divided by 1 plus water content. The third one is equals to the bulk unit weight, that can be written as G plus E into SR whole into gamma W divided by 1 plus. This is the bulk unit weight. From the bulk unit weight we can get 2 more densities. One is dry density and another one is saturated density. The dry density is the condition where the soil is dry. Mainly means we have only air in that void. So here we know that for the dry soil, for getting the dry density, that is gamma D, the degree of saturation is 0, and for the saturated density, fully saturated soil, that is the fully saturated soil, the SR will be 100%. So the dry density is हमें dry density देखी परिया कि dry density रो फॉर्म SR A इक्वेशन रे हमें SR वैल्यू का 0 पुट करिया. तो ये 0 पुट कर देले कोन हे जाउची, दिस टर्म विल बी 0. ताले टोटल फार्मूला कोन हे जाउची, मो पाखरे dry density रो गामा T will be equals to G gamma W divided by 1 plus. एग्जैक्टली सेम बढ़िया मु सैचुरेटेड डेंसिटी भी भाग करि परबे और गामा सैट थी जगह मु जानि छी सैचुरेटेड केस रे सॉइल केस रे और डिग्री ऑफ सैचुरेशन और 100% और 1 यूज करबे. तो एसआर जगह में ये 1 यूज करबे. तो फार्मूला मोर चेंज हे गेली G plus E होल इनटू गामा W डिवाइडेड बाय 1 plus E. मैं प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी देखि थे व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ गामा W माने डेंसिटी ऑफ वाटर फार्मूला में जानि थे. तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg per meter cube हे परबो और
1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो पारिबो और 9.81 किलोमीटर पर मीटर क्यूब हो पारिबो। तो एई सब जिन जानला पर एबे हमें किछटा प्रॉब्लम सॉल्व करबा चेष्टा करिया। So this is the problem, first problem. ये problem अपन कहि जे हमारो soil अछि, ए soil sample in its undisturbed state माने जो तो natural occurring state रो अछि, what found to have volume। तो जो भी हमर माटी अछि तार वॉल्यूम अछि, ए जो soil रो वॉल्यूम ता हमर केते स्पेस नो छै ना 105 सेंटीमीटर क्यूब स्पेस नो छै, और तार मास अछि, टोटल मास से soil रो मास हो छै 201 ग्राम। तापर गुटे दिस आफ्टर ओवन ड्राइंग माने ए जो मास अछि, ए मास रे हमर मास ऑफ सॉलिड भी थिबो और मास ऑफ वाटर भी थिबो। एज वी नो द मास ऑफ एयर हमर 0 था, तो दिस मास इज कंप्राइजिंग ऑफ मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट पार्ट रे पूछि कि आफ्टर ओवन ड्राइंग ए माटी को आले त हम ओवन ड्राइंग कला पर जो मास अछि दैट विल बी रिड्यूस्ड। ओवन ड्राइंग कला पर हमर ओवन ड्राइंग कले हमर जहां भी वाटर थिबो दैट विल गेट रिमूव। तो हमर जो जिनसटा मिलु जे दैट इज द मास ऑफ सॉलिड विल बी, तो मास ऑफ सॉलिड विल बी 168 grams। Here the volume will be unchanged, the volume will be 105 centimeter cube। हमको कौन-कौन जिनस बाहर करे रहछे ना, फर्स्ट हमको वाटर कंटेंट बाहर करे रहछे W, सेकंड रे हमको बाहर करे रहछे द वॉइड रेशियो, थर्ड बाहर करे रहछे पोरोसिटी एंड फोर्थ रे हमको बाहर करे रहछे डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड द एयर कंटेंट AC। एती बेले हमको बाहर करे रहछे। हम क्वेश्चन आउट ऑफ पॉइंट दिए छी, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स विल बी 2.7। ठीक है, तो एती की जिनस हमको देई छी, तो ए पिक्चर ता एक्चुअली सेम रिप्रेजेंट करै छै। ए फर्स्ट रे मोर थिला वेट थिला 201 ग्राम थिला, तार वॉल्यूम थिला 105 सेंटीमीटर क्यूब। जेतोला मैं ड्राई कर दे तार वॉल्यूम ना जहां भी वाटर जिनस थिला से वाटर रिमूव हे गिरी से वॉइड जाय ओनली एयर अछि, तो तार वेट ता रिड्यूस हे के 168 ग्राम हे गेला एंड वॉल्यूम 105, वॉल्यूम विल बी सेम। एबे सॉल्व केते करिया हम, तो ई डायरेक्टली जति फार्मूला हमें ऊपर देखिले से फार्मूला हमें डायरेक्टली ये जगह यूज कर परिया नहीं। सो वी हैव टू गो टू द बेसिक्स। हमको फर्स्ट बेसिक जीवा को पड़ियो, तो हमें बेसिक केमिति जीवा ना हमर एई हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी बाहर करे के चेष्टा करिया। तो डेंसिटी विल बी फर्स्ट हम बाहर करिया डेंसिटी। हमें जानते डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी मोर मास बाय वॉल्यूम जेतो अछि, तो फर्स्ट केस रे तो मोर सॉइल ता नेचुरल स्टेट रे थिला, ता मास थिला 201 ग्राम, सॉरी 201 ग्राम अछि एंड द वॉल्यूम इज 105। ठीक अछि, तो एउ हम बात करि परिबे बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी यूनिट के ध्यान दबा, मास हमर ग्राम रे अछि एंड वॉल्यूम ता मोर सेंटीमीटर क्यूब रे अछि। तो मोर जहां डेंसिटी आसी आंसर आफ्टर सॉल्विंग द डेंसिटी विल बी we have to calculate this the density, this is the density of 201 by 105, that is the density and dry density मु एटा नॉर्मल डेंसिटी बात करी। जदि मते ड्राई डेंसिटी बात करे अछि तो सिंपली मु सॉइल रो ड्राई कला पर मोर सॉइल ड्राई वेट कोन बात करा, द ड्राई टू वेट ऑफ सॉइल और मास ऑफ सॉलिड और ड्राई मास ऑफ द सॉइल जो थे ओनली सॉलिड फॉर्म को वेट में कैलकुलेट करछे, एटा मोर 168 ग्राम आस्ता एंड आई यू नो द वॉल्यूम इज कांस्टेंट दैट इज 105 ग्राम्स 105 सेंटीमीटर क्यूब सॉरी। तो एई जे अगर तो डेंसिटी ना तो मिलिबो दैट विल बी ड्राई डेंसिटी। तो यू टू रो डी रो वैल्यू बात करते हैं और गामा डी दैट विल बी इक्वल टू 168 डिवाइडेड बाय 105। ठीक है, तो मो पाखे ए दुईटा जिनस अच्छी। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर कंटेंट को केमि बाहर करी, तो वाटर कंटेंट सिंपली वाटर कंटेंट मोर बेसिक डेफिनेशन हम जानछि। तो वाटर कंटेंट इज डिफाइंड एज मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉलिड्स। तो मास ऑफ वाटर ता मोर केमि होछ ना, स्टार्टिंग केस रे मोर जो वेट थिला से वेट ता मोर मास ऑफ सॉलिड एंड मास ऑफ वाटर दुईटा पर थिला।
ड्राई करदेवी से मोर ओनली वाटर सब रिमूव हो गला ओनली मो पाखे बचीगला मास ऑफ सॉलिड तो इफ आई एम सबट्रैक्टिंग द फर्स्ट मास एंड द सेकंड मास यदि मैं डिवाइड माने माइनस कर दूची तो मते मेनली आई एम गेटिंग द मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉलिड मैं ऑलरेडी बोल अच्छे एडिटिंग लिखी दी मास ऑफ सॉलिड इज 168 तो हियर water content will be equal to the first mass was 201 gram, I think that is 201 gram, 201 minus the reduced mass 168 divided by mass of solid that is 168 तो इटा कैलकुलेशन करला पारे मते मिले जीवा the water content, this is the water content, I am getting the value 0.196. Actually this is not percentage, actually this is 0.196. The percentage will be 19.6%. We have to multiply this with 100. The next quantity what I have to find out is dry density. Dry density, I think this is the formula. We can calculate the value of dry density. I think this is coming 1.6 gram after dividing per centimeter cube. तो ड्राई डेंसिटी जो बाहरी तो एबे मु जहां मो फार्मूला फर्स्ट रे पढे थे से फार्मूला को यूज कर परबी तो ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू g गामा w डिवाइडेड बाय 1 प्लस तो ए फार्मूला रे मु जानि छी गामा d रो वैल्यू जस्ट मु बात करले g रो वैल्यू क्वेश्चन रे मेंशन हे अछि e रो वैल्यू मु वॉइड रेशियो वैल्यू टा बात करले one important thing what we have to consider is गामा w जोटा मो पाखरे अछि दैट इज द यूनिट वेट ऑफ वाटर हमें यूनिट वेट ऑफ वाटर जानि छै कि दैट मे बी 1000 kg पर सेंटीमीटर मीटर क्यूब हे परिबो एटा और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हे परिबो नहले 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब हे परिबो तो एबे मेनली एज माने क्वेश्चन रे जेतु वॉल्यूम ता सेंटीमीटर क्यूब रे अछि एंड वेट ता ग्राम रे अछि तो मेनली आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला ए फॉर्मूला हम यूज करियो बाध्य है पहले हमर वेट और वॉल्यूम ए यूनिट रे अछि तो हियर वी हैव टू टेक द गामा w एज 1 तो एटा जानली गामा d जाना अछि g जानि पारली गामा w जानले तो सेव टू I have only one unknown that is what is to e so we can easily calculate the e after calculating the e we can calculate the other data means we have different we have porosity we know that the relation between porosity that is e divided by 1 plus after calculating the e we can calculate the porosity after calculating the porosity we can calculate the what I have to calculate one हम void रेशियो बात करते हैं वाटर कंटेंट में बात कर सकते हैं void रेशियो बात करले porosity बात करले डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट we have to calculate तो हमें after calculating the all the values we can easily get the SR value that is we have to use this formula E हमें बाहर करे सारे चीज SR this is only unknown water content we know and G value is given in the question we can easily calculate the SR value after calculating the SR value we have one formula that is SR plus AC will be equal to 1 तो SR value ये formula रे बाहर करेला पर हमें AC रो value directly we can find out so this is the question I am not calculating the answers you can calculate the answers by only putting the formulas values you can just compare the answers with the answer that is coming here the next question होची ए moist soil here the moist soil means जो soil रे किछ परसेंट हमर वाटर होची तो moist soil तार हम टोटल मास रहुनी soil that is 633 ग्राम और तार वॉल्यूम होची 300 cc में सेंटीमीटर क्यूब तापरे हमर वाटर कंटेंट w वैल्यू होची 11% and g value is given 2.68 here we have to determine these values पूर्व क्वेश्चन में जहां भी डिटरमाइन करथले सेम हिसाब रे e sr वैल्यू मार्क करेंगे and also determine the water content at which the soil gets fully saturated without any increase in volume जहां पूर्व क्वेश्चन में हम जेमती हम बात करथले से एग्जैक्टली सेम वे रे हम ए सब जिंस बात करिए चेष्टा करिए गोटे एक्स्ट्रा जिंस ए जाय रे 50 से 50 कि जदी कोन सॉइल ता
फुल्ली सैचुरेटेड हेई परिबो जदि मॉइस्ट सॉइलटा जदि फुल्ली सैचुरेटेड हेई नथिबो मते बाहर करार अछि केते वाटर कंटेंट रे मो वाटर कंटेंट वैल्यू केते होची जेमति कि मोर सॉइलटा फुल्ली सैचुरेटेड हेई तो सेम वैल्यू मु माने ए जगह बाहर कर जहां यूज करते सेम जिंस को बाहर कर परिबे फर्स्ट मु जानले मास को बोले मोर मास देछि वॉल्यूम देछि वाटर कंटेंट इनिशियल स्टेज रे देछि जीरो वैल्यूटा देछि तो मु फर्स्ट बल्क डेंसिटी और बल्क यूनिट बाहर करियो मास देछि एंड वॉल्यूम देछि दिस इज द आंसर दैट आई एम गेटिंग तापरे वो डायरेक्टली वाटर कंटेंट जो डायरेक्टली देछि मु डायरेक्टली ये फार्मूला यूज कर परिबे गामा डी और रो डी इक्वल्स टू रो डिवाइडेड बाय 1 प्लस रो गोटे कथा एठी तमन ध्यान दबो जेमति कि 11% we cannot write 11% in the formula we have to calculate in the decimal आगे वाटर कंटेंट 11% को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे दैट इज 11/100 तो आंसर इज विल बी 0.1 तापर हम ड्राई डेंसिटी रे वैल्यू बात करेंगे आफ्टर गेटिंग द ड्राई डेंसिटी सेम फार्मूला को होची g गामा w डिवाइडेड बाय 1 प्लस c एई क्वेश्चन रे सेम जिंस हमें देखि पारे कि वेट हमर ग्राम रे अछि एंड वॉल्यूम टा मोर सेंटीमीटर क्यूब रे अछि ताहेले एई टाइप क्वेश्चन में डायरेक्टली गामा w रो वैल्यू मतलब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नबो पड़ेगा तो सेम ए बाहर कला पारे ए जिंसटा रो डी विल बी इक्वल्स टू g गामा w डिवाइडेड बाय 1 प्लस तो ए रो डी रो वैल्यूटा हम जानिले g गामा w और e रो वैल्यूटा हम जानिले आफ्टर फाइंडिंग दिस after putting these values I can get the value of void ratio तो void ratio मते आ जाउची 0.41 तो void ratio कैलकुलेट करला पर मोर पास फर्स्ट फार्मूला अछि E * SR दैट इज 1 + E तो E रो वैल्यू मु जानि छी SR रो वैल्यू मते फाइंड आउट करियार अछि W रो वैल्यू मु जानि छी एंड G रो वैल्यू मु जानि छी तो आफ्टर पुटिंग ऑल दिस in this equation I can calculate SR value. SR will be 0.711 ठीक अछि तापर डायरेक्टली फार्मूला रे मु पोरोसिटी रो वैल्यू बाहर कर दैट इज E / 1 + E पोरोसिटी will be